शो है गुरु ज्ञान। मैं हूं महेश गुलानी और आज का हमारा शीर्षक है, क्या बिग बॉस टीनेजर्स के लिए अच्छा है? इज इट वर्थ द वॉच? बिग बॉस 17 दैट्स हैपनिंग नाउ। इट स्टार्टेड फ्रॉम 2006, सो 17 years later 2024 वी हैव द फाइनल्स। फाइनल्स हैं इस संडे, यानी कि 28 तारीख को। कौन होगा विनर्स? जब तक हम ये जानें कि कौन विनर होगा, कौन जीत के जाएगा करीब 1 करोड़, कौन बहुत पॉपुलर हो जाएगा, इसके बाद पार्टियां लाइफ बन गई, ये सब जानने से पहले हमें कुछ बिग बॉस के बारे में जानकारी करनी पड़ेगी। देखिए, बिग बॉस जो शो हो रहा है इंडिया में, आज वो 17th शो है, यानी कि बिग बॉस 17। ये शुरू हुआ था एक्चुअली 1997 में। पहला डच वालों ने किया था, उसके बाद अमेरिका में ये शो पॉपुलर हुआ, स्टार्ट हुआ या रादर, और 1996 में, 1997 में, 1997 से लेके आज तक बिग बॉस अमेरिका में एज बिग ब्रदर कहा जाता है और इंडिया में बिग बॉस के नाम से जाना जाता है। अब क्या है कि जो शुरू में बिग बॉस था, यानी कि बिग ब्रदर अमेरिका में था और आज उसमें बहुत फ़र्क हुआ है, और उसी तरह इंडिया में भी जो बिग बॉस पहला वाला था और आज जो हो रहा है उसमें बहुत फ़र्क है। इस शो का एक्चुअली जो कंपेयर करता है, जो एंकर करता है, वो बहुत ही पॉपुलर स्टार इंडिया का है, जिसका नाम आप सभी जानते हैं, सलमान खान। सलमान खान एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस, जिसके मिलियंस ऑफ फैंस हैं, वो ये होस्ट कर रहा है। और उसने प्राय प्राय बहुत सारे 14 आई थिंक उसने होस्ट किए हैं, बाकी 1-2 और ने किया है। तो बिग बॉस एक्चुअली फिल्म सिटी में इसका सेट बना हुआ है, बॉम्बे में। पहले ये सेट था नियर पुणे, और हमने ये खुद ये सेट देखा था। यहाँ तक कि जो सेट के बाहर से अगर हम कोई आवाज़ देते या सीटी बजाते, तो वो सेट के अंदर में उनको कहीं ना कहीं सुनाई दे सकता था अगर शांति में। लेकिन अब बहुत अच्छी तरह कवर्ड है, बाहर की आवाज़ इतनी आती नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आती। यहाँ तक कि अगर गाड़ी भी पास में से जा रही होगी उसकी भी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, अगर बर्ड्स कुछ आ जाती है अंदर सेट के अंदर तो दूसरी बात है। अब बिग बॉस में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ देर आर ग्रुप ऑफ 16 to 18 contestants cut off from the world and who are competing here for a prize money of around rupees 1 crore, yeah, which is 10 million. Now, there are very strict rules for Big Boss. The rules are that you cannot have any contact with anybody except for the contestants, your co-contestants. Then you have no pen and paper, you have no mobiles, you have no television, there is no clock or watch given to you, which means you are completely lost from time, season, and also the sun rising and sun setting, right? You can see the sky partly, just partly, because if that was not there, then you may become insane there. So they don't want you to become insane, they want you very much as a sane person. And you cannot sleep except for the 8 hours that they give you. If in between you do take your 40 winks, you will hear the big boss blowing a alarm that someone is sleeping. So therefore 40 winks here and there you can take. Another question is, people ask, is Big Boss fake? Is it scripted? Is it designed for a particular person who should be a winner? I don't think so. It should be like that. If it was, then it won't be popular. The popularity of the show every year it's going up is because that it must be fair. The audience identifies, the audience want that person to be a winner, and if the common base, there's a common factor, and you go according to that, then only you can. Now so therefore, sometimes there can be a possibility that there is some candidate who is a favorite of the producers, sponsors, and other things. In that case, you can say that it is a sculpted reality. Now, sculpted I meant is that there is a possibility that they do talk sometimes to the people which are the filming crew, the medical, and there can be a hush hush kind of a thing. But with those 120 cameras and microphones, probably that is also limited. You are not allowed to smoke in the common room. There is a zone which is strictly for smoking, so you can eat as much as possible, but the cooking has to be done by you. The cleaning of the house is to be done by you, which is all very good. But इस बार बिग बॉस 17 में बताया गया था कि इन्होंने इतना अनक्लीन रखा था, इतना डर्टी कर दिया था सारी जो चीज़ें थी वहाँ, कि बाहर से लोग आके बना के गए और एक तरह से उनकी इंसल्ट की कि ये पहली बार हुआ है कि हमको बाहर से लोग मंगाने पड़े ये सब सेट करने के लिए। तो विच इज़ नॉट डजंट स्पीक वेल। अब कैमराज सब जगह लगी हुई हैं, ठीक है ना, और आपके ऊपर 24 घंटा वो कैमरा है। हाँ, माइक्रोफोन्स भी हैं, यानी कि आप कुछ ऐसे कह भी नहीं सकते हो। तो अब बात ये है कि मैंने ये क्यों किया है, ये वीडियो बनाया है।
because I have my favorite also. And the other thing is that the only show that I watch on television is actually Big Boss. Now, it's not that, I'm doing publicity here for Big Boss or I've been paid for it. No, this is just my personal wish because it's my favorite program. And I like Big Boss. Like, it's like if you like to go to a particular city or a country, and if you have no explanation for that, same way for me also, I have no explanation, but I like it. Now, there is so much fair. मतलब कितनी चीज़ें आप देखते हो टेलीविजन पे, ओटीटी पे और मोबाइल्स पे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यानी कि आपकी 10-15% आपकी रुचि होती है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, और वो हो सकती है साइकोलॉजी, फिलोसफी, गेमिंग, ट्रैवल, फिल्म, फैंटेसी, फिक्शन, न्यूज़, करंट न्यूज़, जनरल नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। मुझे साइकोलॉजी अच्छा लगता है, मतलब मुझे देखना है, जबकि ये जो शो है ये बेस्ड है ऑन 1984 बुक था जॉर्ज ऑरवेल का। ये आया था द ह्यूमन ज़ू, और तब जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे मुझे सचमुच एक ख्याल आया कि कुछ लोग अगर 60-70 दिन के लिए एकदम अलग रहते हैं दुनिया से दूर, तो क्या हो सकता है। तो उस नॉवल में ऐसे लिखा हुआ है। तो जब पहला शो जब हुआ था, जब डच वालों ने बनाया था, तो दे वर इंस्पायर्ड बाय दैट बुक, उन्होंने ऐसे एक्नॉलेज किया था। तो मेरे को ये बातें तभी भी अच्छी लगी थी और आज भी मुझे बिग बॉस में बुरा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि इसमें तो सिर्फ लड़ाई होती है, आपको क्या अच्छा लगता है महेश गुलानी जी उसमें लड़ाइयाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि खाली लड़ाइयाँ होती है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू तो बहुत है। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आते रहते हैं हर वीक, और सबसे बेस्ट क्या है कि हर वीक जो वीकेंड में होता है तो सलमान खान भी जी आते हैं, और वो भी कुछ बहुत कुछ करते हैं एंटरटेनमेंट। तो एक तरह से जो वीकेंड का वार जिसको बोलते हैं, विच इज़ ऑन आइदर फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, तो वो पॉपुलर होता है, लोग वो देखते हैं, बाकी नहीं देखते हैं। बट मैं काफ़ी देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो, और नहीं मिला तो अगर मिस हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई रनिंग स्टोरी चल रही है, बट यही मैं बिग बॉस ही देखना चाहता हूँ। तो बस एक और बात कहूँगा कि इस बार 5 लोग हैं जो अभी आज के दिन जो फाइनल में आ चुके हैं, जिसमें वो नाम है मनारा है। मनारा एक एक लड़की है जो 32 इयर्स की है, और बहुत सिंपल लड़की है, वो जो है नेचुरल है, उसकी कोई बैकिंग नहीं है, थोड़ी फिल्म्स उसने की हैं साउथ में शायद, और वो जैसे जो कुछ करती है वो नेचुरली करती है, इसीलिए वो अच्छी अच्छी लगती है, और मेरे लिए मुझे लगता है वो ठीक है कि वो एक आ गई है इस टॉप 5 में। फिर उसके बाद आता है एक अरुण है जो हैदराबाद से हैं, और वो भी एक नेचुरल प्लेयर हैं। उनकी उनकी कोई बैकअप कोई इतना पॉपुलर ये नहीं है, और वो बोलते अच्छा है, वो शायद इंटरनेट सेंस ये। तो अरुण बहुत ही एक आम आदमी का तरह है, और बहुत उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। वो सिर्फ लड़ाइयों में पार्ट लेना या ये वो जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वो करता है, वरना वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। चाहे वो जो बाकी जो लोग उसमें जो शो में थे उनको पसंद नहीं था अरुण, वो यही बोल रहे थे कि तू सो रहा है, तू दिखता ही नहीं है, बट मेरे हिसाब से वो ठीक ही था कि जब उसकी ज़रूरत थी तो आता था, बट बिग बॉस के फॉर्मेट में शायद वो पसंद नहीं है। थर्ड अंकिता लोखंडे है, जो बहुत ही पॉपुलर हीरोइन है, टेलीविज़न की रानी कहते हैं उसके, और वो दिखने में भी अच्छी है। यूँ तो उसका जो बात करने का स्टाइल, वॉकिंग, ड्रेसिंग सब कुछ अच्छा था, बट समहाउ बिकॉज उनके हस्बैंड भी पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वो कमज़ोर हो गई। हस्बैंड इसलिए क्योंकि वो हस्बैंड से लड़ती थी, फिर मेकअप करने के लिए सॉरी 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 करती थी, तो ये कैरेक्टर एक अच्छा नहीं लगा। अगर आज कोई भी हमारे देश की बेटी है या बहू है, वो अगर अंकिता की तरह कुछ करना चाहती है या करती है तो वैसे अच्छा नहीं है। शी इज़ नॉट अ गुड मॉडल टू व्हाट यू शुड बी। सो मेरी वो फेवरेट नहीं है, पर आई डोंट नो, लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी वो फेवरेट है। नंबर 2 पे है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर एक बहुत ही अच्छा खेला करने वाला इंसान है, बहुत ही मंझा हुआ है, बहुत ही प्रोफेशनल है। शायद इसीलिए मुझे पसंद नहीं है कि उसकी हर बात जैसे ना परफेक्शन की तरह होती है, वो हर वक्त कॉन्शियस होता है कैमरा के लिए ही कर रहा है। तो मेरे लिए जैसे बिग बॉस में एक प्रोफेशनल पार्ट ले, एंड ही इज़ लाइक वो इंटरनेट में हर वक्त हर दिन उसकी कमाई यहीं से होती है, तो वो इस मीडियम को बहुत अच्छी तरह समझता है। वैसे फेवरेट भी है, उसके फैंस भी हैं, लगता है वो जीत सकता है, बहुत चांसेस हैं, 70% तो उसकी भी चांसेस हैं। बट अब जो मेन बाकी बचा है वो कौन है, वो तो अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार मेरे लिए विनर है। अभिषेक कुमार में मेरे को ना कुछ विराट कोहली की छवि दिखती है, उसकी कैरेक्टर,
उसका जो जज्बा है जीतने का, ये सब विराट कोहली का नेचर दिखता है। अभिषेक कुमार ने लड़ाइयाँ भी की हैं, उसने हीरोगिरी भी की है, उसने कॉमेडी भी की है, शेर व शायरी भी करता है। और मेरे हिसाब से ही इज़ व्हाट अ हीरो, इंडियन हीरो शुड बी, इंडियन गाय शुड बी। बहुत ही यंग है, तो एक तरह से मैं जनरेशन जी के उसको मैं उसमें स्वॉट में रखता हूँ। और अगर इस तरह के लड़के हमारे देश में हुए तो देर इज़ नो हार्म। हाँ, देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा पोक किया जाएगा या ये कर, तो यू मस्ट फाइट बैक ऑल्सो, लाइक विराट कोहली वुड डू, एंड दैट्स व्हाई ही इज़ वेयर ही इज़, एंड आई एम श्योर अभिषेक कुमार विल बी ऑल्सो। तो मेरा वोट अभिषेक कुमार के लिए, बट देखा जाएगा। मुझे लगता है कि अभिषेक कुमार ही जीतेगा। और अभिषेक कुमार ने एक शेर कहा था इस शो में कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, बट लोग मेरे को गिराने में कई बार गिरे। बात जहर की नहीं थी, वो तो मैं पी गया। बात जहर की नहीं थी, वो तो मैं पी गया। तकलीफ तब हुई जब लोगों को, तकलीफ तब हुई लोगों को कि मैं जहर पी के भी जी गया। तो यही बात कहते हुए कि मेरे हिसाब से 28 जनवरी 2024 के बिग बॉस 17 विनर अभिषेक कुमार होंगे। ये तो देखा जाएगा बाकी जब रिजल्ट निकलेगी। उसके साथ मैं ये एंड करता हूँ, लेकिन एक बात बताते जा रहा हूँ, एक स्कूप, कि अमेरिकन जो बिग ब्रदर है उसमें कैमरा बाथरूम में भी लगाई गई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट बाथरूम में हुआ कि उनके पास एविडेंस नहीं था, उसके बाद उन्होंने वहाँ लगाया है। कहते हैं इंडियन बिग बॉस में कैमरा नहीं है बाथरूम में, बट अगर कुछ ऐसा कांड बाथरूम में होता है, क्योंकि सबको पता है कि बाथरूम में कैमरा अगर नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बिग बॉस इस सेफ्टी मेथड में कोई सोच रही है? इसी सोच के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आएंगे हम एक अगले वीडियो के साथ वेरी सून, and don't forget to subscribe my channel. I want more subscribers. Definitely like my video and also say this. So bye bye and namaskar. This is Mahesh Gulani signing off.